In last chapter, we have studied about that if we know the sides of the right triangles, we can find the value of any t ratio. But in this chapter, we are going to study that when we know one side and one acute angle of a right triangle, then how can we find the remaining sides of the triangle and remaining angles? Suppose आपके पास ये राइट ट्राइंगल है ABC, in which angle B is 90 degree, and if you know one side of this triangle BC 7 centimeter and one acute angle, suppose this acute angle A is 30 degree, then we can easily find the remaining side AB and AC. पाइथागोरस थ्योरम में हमने स्टडी किया था कि if we know the two sides of a right triangle, then we can calculate the third side. But in application of trigonometry, we are going to study that if we know one side of a right triangle and one acute angle, then we can find the remaining sides and acute angle as well. In this right triangle, if angle A is 30, B is already 90 degree, so C can easily be found using angle sum property. But the sides AB and AC, if you want to find, then please in this right triangle ABC, you will take the side that should be find out in numerator and the given side 7 centimeter in denominator, and then we will see that which t ratio is this. In this right triangle AB is a base because acute angle as well as right angle on the side AB, इसलिए AB साइड बेस होगी, BC परपेंडिकुलर होगी और AC हाइपोटेन्यूज होगी. मैं लिख भी लिखता हूं यहाँ पे, सपोज B बेस perpendicular and hypotenuse. Now AB is base and P is perpendicular. So base upon perpendicular हमने बताया था cot. Base upon perpendicular क्या होगा? Cot. And cot angle जो दिया हुआ है आपको 30 degree. It means 8B upon 7 is also equal to cot 30 degree. Implies 8B as it is 7 cot 30 की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ. cot 30 क्या होता है? cot 30 होता है √3. इट मीन्स AB की जो वैल्यू है दैट विल बी 7√3 सेंटीमीटर. So in this way we can easily find the side AB. Similarly, if you want to find AC, then also AC, the side that should be calculated should be taken in numerator, and the side which is given in should be taken in denominator. Then this will become H upon P, and H upon P is equal to cosec, and angle is 30. So cosec 30 is there. It means AC find आप करना चाहते तो AC upon 7 is equal to cosec 30, that is 2. This implies AC is equal to 2 into 7, that is 14 cm. So now we can easily find the remaining sides AB as well as AC using trigonometry. In the chapter number 9, some more application of trigonometry, हम इसी फॉर्मूले को, इसी कंसेप्ट को अप्लाई करने जा रहे हैं. बट उससे पहले सम बेसिक्स को हम क्लियर कर रहे हैं. पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किसी भी राइट ट्रायंगल में अगर आपको एक साइड और एक एक्यूट एंगल
नोन है, तो रिमेनिंग साइड्स को आप फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके. सेकेंड, this trigonometry can be easily used to find the questions of the height and distances. उसके लिए सपोज जो भी अर्थ लाइन है आपको उसको रिप्रेजेंट करना है इस हॉरिजॉन्टल लाइन से. अब अर्थ लाइन है या कोई रोड है या कोई सरफेस है या सी लेवल है, उसको जनरली हम इस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये लाइन कहलाती है हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल लेवल. लेवल और लाइन. And the objects which are standing on the earth, that should be either a tree or a building or a tower or a rock or any other thing, that should be represented by this vertical line. ये सपोज ये हॉरिजॉन्टल यानी अर्थ लाइन है और ये एक आपके पास पोल है विच इज स्टैंडिंग ऑन दिस ग्राउंड लेवल और हॉरिजॉन्टल लेवल. Then this is the top of the pole and this is the base of the pole. And suppose here is an observer standing here. Then the eye of the observer and the top of the pole, इनको आप ज्वाइन करेंगे तो जो लाइन आपके पास आएगी, the line joining the eye of the observer and the top of the pole is called line of sight. इस लाइन को आप कहेंगे लाइन ऑफ साइट. अब ये जरूरी नहीं है कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर पोल ही हो, यहाँ ट्री भी हो सकता है, बिल्डिंग भी हो सकती है, टावर भी हो सकता है, रॉक भी हो सकती है, यानी एनी ऑब्जेक्ट्स विच इज स्टैंडिंग ऑन द अर्थ is represented by a vertical line, and any surface which lies on the ground is represented by this horizontal line. Third point, the line joining eye of the observer and the top of the pole, the top of the tree, is called line of sight. And the angle between line of sight and the horizontal line, ये आपकी ऑब्जर्वर की आई है तो यहां से आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू द हॉरिजॉन्टल लेवल. अगर जहां भी आप एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना चाहते हैं वहां क्या ड्रॉ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लेवल के पैरेलल एक हॉरिजॉन्टल लाइन. देन दिस एंगल बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल लेवल इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. थर्ड, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्लियर है आपका कि ऑब्जर्वर की आई और टॉप ऑफ द पोल को जोड़ेंगे, दैट इज द लाइन ऑफ साइट, और की आई से हॉरिजॉन्टल लेवल की इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन. एंगल बिटवीन ऑफ एलिवेशन. You are on earth and you are seeing the top of any object, then the angle of elevation is formed. हाँ निधि बेटा क्या बात होगी? निधि, हेलो हेलो, निधि, आर यू लिसनिंग मी? निधि, निधि फिर आ गया आप स्क्रीन पे, इसको
नाउ सिमिलरली द एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होगा? सपोज अगेन यू आर, दिस इज एन हॉरिजॉन्टल लाइन. प्रियंका, आर यू लिसनिंग मी? प्रियंका, साउंड इज क्लियर? Sound is clear or not? Yes, sir. Yes. आपका माइक बंद है. आप ठीक है बेटा? हेलो, Yes, sir. सही है बेटा? Yes, sir. ओके. तो किसी भी सरफेस को आप ग्राउंड लाइन को आप हॉरिजॉन्टल लेवल से रिप्रेजेंट करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन से. सपोज इसके ऊपर यहाँ एक टावर है इस बार, and observer is on the top of the tower. And observer is on the top of the tower. And from here he is seeing an object, suppose point at point A. किसी पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसको देख रहा है ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर. देन द पॉइंट ए एंड ऑब्जर्वर के टॉप को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसको फिर से क्या कहेंगे? लाइन ऑफ साइट. सेकंड, क्योंकि लाइन ऑफ साइट की हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ ही जो है एंगल ऑफ एलिवेशन या डिप्रेशन बनता है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन करने के लिए ऑब्जर्वर के यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे आप, इसके हॉरिजॉन्टल लेवल की. तो ये जो एंगल आपका हुआ हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. तो ये 3 बातें आपको पता होनी चाहिए. एक बार फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं. नंबर 1, जो भी अर्थ सरफेस है या रोड है या सी लेवल है, उसको आप हॉरिजॉन्टल लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे. द ऑब्जेक्ट विच इज स्टैंडिंग ऑन द रोड और अर्थ should be represented by vertical line. The angle between line of sight and horizontal line is called angle of elevation. Similarly, if an observer is on the top of the tower, then the angle formed is known as angle of depression. Again, angle is always formed between line of sight and horizontal line. आपका एंगल ऑफ एलिवेशन हो या एंगल ऑफ डिप्रेशन, दोनों ही कब बनेंगे? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल. तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है. एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा? जब कोई ऑब्जर्वर अर्थ पे होगा और वो किसी भी बिल्डिंग के, ट्री के, पोल के टॉप को देख रहा होगा, तो जो एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. बट व्हेन ऑब्जर्वर इज ऑन द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, सपोज बिल्डिंग की टॉप पर है और ऑब्जेक्ट अर्थ पर है, तो ऑब्जर्वर टॉप से अगर अर्थ के ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा. एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का ही एंगल लेना है. यानी ये एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा जो क्रॉस किया है मैंने, क्योंकि ये तो लाइन ऑफ साइट और वर्टिकल लाइन के बीच का एंगल है. तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन हमेशा किसके साथ बनते हैं? इसका मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ. इन कंसेप्ट के बाद आपको ये बता ही दिया है कि इफ यू नो वन acute angle and one side of a right triangle, then
the other sides can easily be calculated using trigonometry. उसके लिए suppose you have a question of exercise 9.1. The first question is a circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole on the ground. Suppose this is the ground. ये आपका ग्राउंड होगा सपोज. ये वर्टिकल लाइन आपकी क्या हो गई? पोल. A circus artist is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole. ये top of vertical pole to the ground. ये suppose point is ground पर जहां पे tightly stretch की गई है, बांधी गई है. तो the line joining point A to top of pole is again a line of sight, and the rope length, क्योंकि लाइन ऑफ साइट ही रोप की लेंथ भी है, इट इज गिवन 20 मीटर. फाइंड द हाइट ऑफ द पोल. आपको ये हाइट फाइंड करनी है. सपोज इसका नाम रख देते हैं ए बी सी, राइट ट्रायंगल, एंड द एंगल मेड बाय रोप. तो रोप क्या है? एसी. एसी जो रोप है एंगल बना रही है ग्राउंड के साथ कितना? 30 डिग्री. यानी एंगल बिटवीन रोप एंड ग्राउंड is 30 degree. It means this is the angle of elevation. Find the height of pole. This is the BC is the height of pole in this figure. Figure is also given in this question. तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको इसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है. पहली बात तो आपको हाइट फाइंड करनी है. लेट हाइट ऑफ पोल. जनरली यहाँ पे देखें तो BC से रिप्रेजेंट होगी हाइट ऑफ पोल, और इसको h मीटर, हम h मीटर सपोज कर लेते हैं. मैं हर क्वेश्चन में ही हाइट को जनरली h से रिप्रेजेंट करूंगा. किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट हो तो मुझे यहाँ हाइट पोल की फाइंड करनी है. इस फिगर में देखो तो हाइट ऑफ पोल है BC, इसको मैंने h सपोज कर लिया. दूसरा, एक साइड AC आपको ऑलरेडी गिवन है 20 मीटर. तीसरा, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री. तो जो आपको सपोज जो फाइंड करना है वो सपोज कर लिया. उसके बाद आप इन राइट ट्रायंगल ABC we apply the trigonometry, or if we apply the trigonometry then h that should be find out divided by the given side 20, then this h height of pole upon 20 किस टी रेशो के इक्वल होगा, पहले ये देखेंगे. h यहाँ पे इस फिगर में अगर हम देखें तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, और ये हाइपोटेन्यूज. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज हमें क्लियर होने चाहिए किसी भी राइट ट्रायंगल के. तो इसको मतलब हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है और हाइपोटेन्यूज गिवन है. तो यानी ये P है, ये H है. और P बाय H आप सोचेंगे क्या होता है, तो P अपॉन H होता है साइन. इट मीन्स इट इज इक्वल टू साइन 30. यहाँ आप h फाइंड करना चाहते हैं, डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू साइन 30. साइन 30, वैल्यू ऑफ साइन 30 इज 1/2. इट मीन्स आपके पास h हाइट आपके पास पोल की आ जाएगी. इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन द हाइट ऑफ पोल इज 20 मीटर. तो सिंपली आपको हाइट फाइंड करनी थी, इजीली फाइंड कर. उसके लिए बार बार आपको बता रहा हूं कि द साइड दैट शुड बी फाइंड आउट should be taken in numerator
the side which is given should be taken in denominator. Then see which T ratio is formed by these two sides. Then the T ratio is formed here in this question is sine, and angle is given 30 डिग्री, तो sin 30 डिग्री इक्वल रख लीजिएगा. आपके पास एक इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिएगा. इज इट क्लियर कविता? Yes, sir. सिमिलर वे में सेकंड सपोज क्वेश्चन है, ए ट्री. अब ट्री मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय वर्टिकल लाइन. ये ट्री है सपोज, and this is a ground line. A tree breaks due to storm. नाम भी रख लेते हैं. ए बी ग्राउंड लाइन है, बी और सी ट्री की हाइट है. एक बात और आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्ट अर्थ की सरफेस पे लिया जाएगा दैट शुड बी टेकन परपेंडिकुलर. वो हमेशा क्या होगा, उनके बीच में ग्राउंड और इसके बीच में हमेशा एंगल क्या लेना है, राइट एंगल. सपोज दिस ट्री इज ब्रेक डाउन फ्रॉम हियर, फ्रॉम पॉइंट डी से आप मान लीजिएगा ये ब्रेक हो गया ट्री स्टॉर्म के कारण. ए ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट, यहां से ब्रेक हुआ तो ब्रोकन पार्ट हुआ सी डी. बैंड्स, ये ब्रोकन पार्ट ये था ऐसे बैंड हो गया, सी डी यहां से यूं बैंड हो गया एंड टच इज द ग्राउंड. सपोज ये जो पॉइंट है यहां आके यहां टच कर गया पॉइंट ए पर. जो डीसी पार्ट था ये बैंड होके यहां पे आ गया, यानी पॉइंट सी एक तरह से एक के ऊपर टच कर गया. द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ ट्री, the foot of tree, this is the foot of tree or base of the tree, to the point where the top touch. Point जहां पे top touch कर रहा है वो क्या है, A. The distance between A and B, यानी foot of the tree and the point where it touches the ground is 8 meters. Find the height of the tree. Now height of tree means we want to find BC. This is the total height of the tree. अब BC, we want to find BC, it means we must know BD as well as CD. So according to question, first of all, AD is also equal to BC. ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि ये DC ही बैंड होके एक पे गिरा है. It means now in this right triangle ABD, first of all we find BD. BD is this angle between this is 30 is already given in this question. The angle top of the tree touches the ground making an angle 30. Ground के साथ जो एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द ट्री 30 डिग्री, तो इसका मतलब BD आप फाइंड करना चाहते हैं डिवाइडेड बाय 8. उसके अकॉर्डिंग यहाँ ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये हाइपोटेन्यूज हुआ. यानी इन राइट ट्रायंगल ABD BD परपेंडिकुलर फाइंड करना है डिवाइडेड बाय 8. 8 गिवन है. अब नाउ दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस एंड परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 10. सो 10 30 यहां से इक्वल आया, ये इक्वेशन आपके पास बन गई. BD divided by 8 is tan 30, that is 1 by root 3. It means from here the value of BD is 8 by root 3 meter. Similarly AD फाइंड कर लेंगे. सिमिलरली AD फाइंड करने के लिए अगेन इन राइट ट्रायंगल ABC AD upon 8. Now AD is hypotenuse upon 8 is base. So hypotenuse upon base is
also equal to sec 30, and from here AD is also equal to sec 30 की value of sec 30 is 2 by root 3. It means this is AD is 16 by root 3 meter. Now if you add BD and AD, because AD is also equal to CD, so height of tree आप फाइंड करने के लिए ऐड करेंगे BD plus CD, or you can say BD plus AD, because total height of the tree is BC, which is equal to BD plus CD, but CD is also equal to AD. So here BD 8 by root 3 plus 16 by root 3. इन्हें ऐड करेंगे आप तो रूट 3 एलसीएम का साइड पार्ट नहीं आ रहा हेलो सर, बोर्ड का साइड वाला पार्ट नहीं आ रहा। ओके ओके इसको यहाँ से हटा देते हैं बेटा, यहाँ कर देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर आपको आराम से दिखाई। सो हाइट ऑफ ट्री एक्चुअली बीसी है, और बीसी इज इक्वल टू बीडी प्लस सीडी। बीसी की हाइट जो है बीडी प्लस सीडी के इक्वल है, बट CD is also equal to AD. It means it is also equal to BD plus AD. BD आपने फाइंड किया है 8 by root 3 प्लस AD फाइंड किया है 16 by root 3. If you take the LCM root 3, then numerator 8 is added in 16 and it will become 24 by root 3. Now you can rationalize it. So rationalize करने के बाद आपके पास आएगा 24 root 3 divided by 3, that is 8 root 3. This is the height of the tree, 8 root 3 meter. Is it clear now? Yes sir. Yes sir. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पहले पर मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं। सपोज इन ए राइट ट्रायंगल आप ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके कोई साइड फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए नंबर 1 आपको एक साइड जरूर पता होनी चाहिए और एक एक्यूट एंगल, तो रिमेनिंग साइड्स फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर आप एंगल भी फाइंड कर सकते हैं यहां से, हाउ? Suppose the question is given that a tree of 6 meter standing on a ground एक tree है 6 meter हाइट का, it is make इसकी shadow is also equal to 6 meter on the ground. If the 6 meter high tree is forming the 6 meter shadow on the ground, then what is the angle of elevation of its top from the point on the ground? It means अब की बार आपको ये फाइंड करना है एंगल, तो उसी ट्रिग्नोमेट्री का यूज करेंगे आप। उसके लिए पहले आपको ये एंगल फाइंड करना है, इसको लेट कर लेते हैं थीटा। लेट एंगल इज इक्वल टू थीटा। देन इन दिस राइट ट्रायंगल अगेन ABC, if you are going to apply B, perpendicular is there, this is base
and this is hypotenuse of this right triangle. So 6 by 6 means perpendicular upon base, and perpendicular upon base is equal to 10. So 6 by 6 is also equal to tan theta. If you are going to apply trigonometry, otherwise in 9th class you have already known that in right triangle ABC, if two sides are equal, then their angles opposite to these equal sides are also equal, और उससे डायरेक्ट 45 आपके पास एंगल आंसर आ जाए, क्योंकि ये 90 है, इट मींस दीज एंगल्स आर इक्वल, एक्स एक्सपोज करेंगे तो 45 आपके पास आएगा, और यहां से ट्रिग्नोमेट्री का अप्लाई करें तो 1 is equal to tan theta, but 1 is also equal to tan 45. in term of tan 1 जो है किसकी वैल्यू है, tan 45 की, इट मींस tan 45 degree is equal to tan theta. So from here, on comparing the angles, theta is 45 degree. Theta is 45 degree. Similarly, suppose a tree of height, suppose AB is a tree making shadow of root 3 times of its height. Suppose AB height आपने h suppose कर ली, and this tree of height h meter making shadow of root 3 times यानी root 3h. Then what is the angle of elevation made by this tree on in this case? Suppose again it is theta. So in that case, this suppose angle ये theta है, आपने suppose कर लिया c, यहाँ लिख देंगे कि right angle is equal to angle c is equal to theta. Then again p upon b is equal to tan theta. This identity can easily be used. Now perpendicular in this case is suppose h height, and the side of this tree is root 3 times of the height. It means if height is h, then its shadow is root 3 into h. Root 3 times इसकी height, then this is equal to tan theta. h से h cancel करेंगे, you are left with 1 by root 3. But 1 by root 3 is equal to tan 30 degree. It means 1 by root 3 को आप tan 30 से replace कर देंगे, and it is equal to tan theta. Implies theta is also equal to 30 degree. So if you know the two sides of a right triangle, then any acute angles can easily be find out. Again using this trigonometry. इस classification exercise से नहीं, लेकिन यहाँ बात हो जाती है ना. हेलो हेलो निशांत, क्या बात बेटा? यस सर, क्या हुआ फिर आवाज नहीं आ रही, क्या बात है? सर? आपकी आवाज आ रही है ना? बेटा देखो ये तो गलत है, ऐसे भी लाइव क्लास में मैं अभी बेटा इसकी क्लास जो है ना, इसके बाद बात करता हूँ, इससे क्लास के बाद. सर किससे? ठीक है, मैं बीच में हेलो हेलो कोई ना, सर सॉरी वो एक फोन आ गया इसके बीच. तो ये क्वेश्चन अब आपको क्लियर हो गया बेटा, ये अंडरस्टैंड कर पाए आप? If you know the two sides of a right triangle,
then you can also find the one acute angle of that right triangle again using trigonometry. बट उसके लिए आप ट्रिग्नोमेट्री की जो डेफिनेशन है टी रेशियोज की वो आपको याद होनी चाहिए कि भाई पी अपॉन बी tan होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कोस होता है. तो ये एंगल के क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में ये आ सकते हैं. राइट नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज इसी. And you know, in all these questions, the questions are all only one right triangle. In this exercise, after 6th question, we also discuss the questions which contains at least two right triangle. तो उससे पहले आप पहले एक लास्ट क्वेश्चन एक बार और देख लें इसका. थर्ड क्वेश्चन नो प्रॉब्लम. Suppose third question is there. A contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter. Suppose this is the level of park. She installed one slide of height 1.5 meter for the children below 5 years age and is inclined at angle 30 degree. ये 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है ये स्लाइड. तो ये सपोज आपके पास राइट ट्राइंगल है. AB is the height of that slide which is 1.5 meter and the angle of elevation in this case is 30 given. Whereas for elder children, she wants to have step slide at the height of 3 meter. इसी में आगे यहाँ बना देते हैं सपोज ये 3 मीटर हाइट की दूसरी स्लाइड है ये, और ये यहाँ पॉइंट डी पर इंस्टॉल हो रही है एंगल 60 डिग्री पर. What should be the length of slide in each case? D, E, F. Suppose this is the right. So again, now in this question there are two slides, one of height 1.5 meter for the age of 5 years, and above the 5 years, the height of the slide is 3 meter. Angle of elevation in first case is 30 and in second 60. Again we have to find the length of slide, यानी AC find करना है तो और एक DF. तो एक तरह से now these are the two questions. Suppose in question in right triangle ABC, AC we want to find, that should be taken in numerator divided by the side which is known by you, that is 1.5, is equal to. Now in this right triangle AC is hypotenuse and 1.5 is perpendicular. Now hypotenuse upon perpendicular is equal to cosec 30. From here AC upon 1.5, the value of cosec 30 is 2, implies the length of the slide is AC is equal to 1.5 into 2, that is 3 meter. यानी जो ये लेंथ है स्लाइड की जो 5 बिलो 5 इयर्स चिल्ड्रन के लिए है, उसकी जो स्लाइड की लेंथ होगी वो कितनी होगी 3 मीटर. सिमिलरली इन द सेकंड केस आल्सो in right triangle DEF,
दिस टाइम BF फाइंड करना चाहते हैं आप, तो BF को न्यूमरेटर में ले, डिवाइडेड बाय द साइड विच इज नोन बाय यू, दैट इज 3 मीटर, is equal to, again this is H upon P, is equal to cosec 60 degree. Now but the value of cosec 60 is 2 upon root 3. So from here BF is equal to 2 divided by root 3 into root 3, and it can be written as 2 root 3 meter, because 3 is equal to root 3 into root 3. न्यूमरेटर ये आपके पास 2 into 3 means root 3 into root 3 divided by root 3. 1 root 3 is cancel out and you will left with 2 root 3. तो इस तरह से आप अभी फर्स्ट 5 क्वेश्चंस जो सिंगल राइट ट्रायंगल्स के हैं इन्हें आप सोल्व कर सकते हैं. एक्सरसाइज 9.1. Now any students have any problem? Simran? Similar? Sucheta? Hello? Hello? यस सर. बेटा अब 5 क्वेश्चंस आप कंप्लीट कर सकते हैं. आपको ये कॉन्फिडेंस हो गया? हाँ मुकुल. सर कर लेंगे, अगर जितने होंगे उतने कर लेंगे, जितने नहीं होंगे फिर आपसे पूछ लेंगे. हाँ तो 1 to 5 ही कर सकते हैं आप अभी, बिकॉज दे कंटेन्स ओनली वन सिंगल राइट ट्रायंगल. आफ्टर दैट द क्वेश्चंस कंटेन एट लीस्ट 2 राइट ट्रायंगल एंड दैट शुड बी सॉल्व इन टुमारोज लाइव क्लास. ओके सर. थैंक यू बेटा. और एक आपका जो टेस्ट है आज 7 चैप्टर के लिए बोल रहा था कि टेस्ट लेंगे हम. अब बच्चे कल- यहाँ से कल जो है इसका 7 चैप्टर का जरूर टेस्ट होगा बेटा, क्योंकि कल लाइव क्लास भी नहीं हो पाई थी, इसलिए आप अपनी तैयारी आपकी होगी, नहीं है तो आज कर लीजिएगा. ठीक है सर. थैंक यू ओके. वेरी. थैंक यू सर. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके वेल. हाँ बोल. हाँ तरुण. तरुण आज तो मच्छर भी आया सको. एत कांदी का खोल माई के बार. अरे कपिल. यो ना पुन्नी. कपिल. 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 अरे मुन्ना के जो क्लास लेकिन चला रहा होगा भाई, यो लग गयो. भागो. भाई अब तो बात ही ना करे यो मात मच्छर. अब तो मच्छर बात ही ना करे. आगो आगो. हल तो आगो. अरे कन खुलवा माइक खुलवाएगा नहीं. कपिल ऑन करन माइक के बस. ओए कपिल. 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 ओए कपिल. हाँ. वह बड़ा दिनों मच्छर. बेटे क्लास ले रहा तो ठीक से. भाई भाई सही में किमी समझ ना रहा यार. भाई समझ में ना आ रहा. सही कहा था.
मार तो सब कुछ समझ मारो। अरे अपना भाई बेटा का उसको अरे मैं कह रहा हूँ ये पढ़े से पेटिन देख का ना बनी बोल रही है। गुड़ी की पेटिन देख का ना ले तरुण तो गुड़ा करी बैग के करा से अयो कैमरा गुड़ा ऑन की होगी कितने ओए तरुण कर वीडियो। ओ तरुण तेरा नंबर दे हिमांशु तू भी दे ले लिख ले। क्या कर दे रोसा हेलो बता अरे जो नए फोन से ना वालों हाँ अरे नया फोन ऐसा ले ली। नंबर लिख ले दे हूँ तेरा बता फोन मेरा अरे कई का बता दे लिख 87 87 0 0 85 अरे हैं कालियों का ही आएगा। 85 अरे के अरे 87 0 85 85 10 10 878 878 ओ मच्छर मेरे बिल इतना दिन तक कितना बेटा ले गए हो ओ एक बार वीडियो ऑन कर हिमांशु। करो स्टूडेंट रुक जा। हाँ कर। कर ली बेटा और अपने दो और सुतो सुतो क्लास ले रोजे। अरे ना यार अरे मैं खाना बैठो देख दे 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 यारी किताब वापस देख हमने देख किताब ले भी ना धर रखी। हैं पहले स्वाद हमने तो किताब भी ना धर रखी। तो अब क्या कर हैं अरे किताब लेकर बैठनी पड़े यार भाई पढ़ ले। ओहो हमेशा पढ़ाकू कोन्या तू खूब पढ़ा खुजा पकड़िया होगा तू बेरो सामने तेरे। अरे तुम दिखे यार तेरे बगल में कोई बैठो है ऐसे के ना तो बोल तो रहे यार कोई। अरे वो चाचा हो वो तो छोटा छोटा छोरो अच्छा वो दूसरा बोल बेटो छोटा बेटो। बोला अगली क्लास शुरू होएगी। आ ले ले जा